Hello students, welcome again, welcome back to my channel with another interesting videos, that is conditional sentence. And today's one is zero conditional. There are many conditional, first conditional, second conditional, third conditional, but today we will only discuss zero conditional sentence. We will learn part by part so that you can understand thoroughly and can use in transformation of sentence. So today's video is so small, so watch till the end and understand, and don't forget to hit the subscribe button if you are new here. So let's understand what is zero conditional. Okay, what is zero conditional? So what is conditional sentence? First we have to understand what is conditional sentence, but before that we have to understand that there are four basic types. There are four basic types of conditional sentences. Okay, in English language you can use these one in your spoken English. It will enhance your talking style, enhance your capability of expressing yourself. So each type has two parts. Okay, each type has two parts. Each type has two parts. It means I already told you that there are a few conditional sentences. Today we will discuss only zero conditional. There are first conditional, second conditional, third conditional, but today's topic is only zero conditional. But each type has two parts. Each type has two parts. What are they? The main clause. Okay, the main clause, and the if clause. Okay, and the if clause. So now I will tell you about the zero conditional. The zero conditional is the situation that are always true. Zero conditional, I'm not writing totally conditional, you understand. Okay, conditional is the situation, that zero condition is the situation that are always true, मतलब कि सॉरी, मैं इंग्लिश में बोल रही थी, मैं भूल गई थी, मुझे हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है. ज़ीरो कंडीशनल एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो भी बात हम लोग कर रहे हैं वो ऑलवेज ट्रू होगा, सच होगा. एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं. इफ आई गो टू स्कूल, I get up at 7. Okay,
इफ़ आई गो टू स्कूल आई गेट अप एट 7। अगर मुझे स्कूल जाना है तो मैं 7 बजे उठूँगा या उठूँगी। अगर मुझे स्कूल जाना है तो देखिए दोनों तरफ से ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। दो पार्ट है। इफ़ आई गो टू स्कूल ये है द इफ क्लॉज, एंड दैट आई गेट अप 7 दैट इज द मेन क्लॉज। आई गेट अप 7 दैट इज द मेन क्लॉज and the if clause is that one, if I go to school. okay, condition is there. इधर कंडीशन है, अगर मैं स्कूल जाना चाहता हूँ तो मुझे जल्दी उठना होगा, 7 बजे मुझे उठना होगा, ठीक है। we use the present simple tense in both the main clause and the if clause. we use simple present tense। देखिए दोनों तरफ ही simple present tense मैंने यूज़ किया है। if clause में भी मैंने यूज़ किया है simple present tense, if I go to school, ओके। और जो मेन क्लॉज है उधर भी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, वो है आई गेट अप एट 7। ओके, अब तक के लिए इतना क्लियर है। और एक एग्जांपल के मतलब हेल्प से समझते हैं। क्या एग्जांपल है इसका? जैसे कि आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट, मतलब बर्फ़ गल जाता है अगर हम लोग उसे हीट दे तो इधर एक कंडीशन है ना। आइस मेल्ट्स हो गया जो मेन क्लॉज है, इफ़ यू हीट इट ये है इफ क्लॉज। पर दोनों ही पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस इफ क्लॉज में क्या होता है? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ई प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। और ये जो मेन क्लॉज है ये है रिजल्ट, ठीक है, वो मैं बाद में बता रही हूँ। ये भी सिंपल, इधर कुछ इफ टिप कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो जो मेन क्लॉज है ना, दैट वन इज द रिजल्ट, दिस वन इज रिजल्ट, दिस वन इज रिजल्ट। जो मेन क्लॉज है दैट वन इज रिजल्ट। थोड़ा मैं कैमरा को नीचे खींच रही हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे रब करना होगा बोर्ड को। तो ये है रिजल्ट, मेन क्लॉज जो है वो है रिजल्ट। और जो इफ क्लॉज है ना, इफ क्लॉज वो है कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, इफ यू हीट इट, ये कंडीशन है। अगर हम लोग इसे हीट दे तो, अगर तुम इसे हीट दो तो आइस मेल्ट्स, ये रिजल्ट। अगर तुम आइस को हीट दो तो इसका कंडीशन है, अगर तुम दो शर्त है। अगर तुम हीट देते हो आइस को, आइस मेल्ट्स, तो आइस गल जाता है, तो रिजल्ट है आइस मेल्ट्स, उसका रिजल्ट है। ये कंडीशन है, इसका रिजल्ट क्या होता है? आइस मेल्ट हो जाता है, ये है रिजल्ट, ठीक है। तो जो मेन क्लॉज है वो रिजल्ट होगा और जो इफ क्लॉज है वो होगा कंडीशन, ठीक है। मीन्स द कंडीशन इज दैट वन, इफ दिस थिंग्स हैपेंस देन दैट थिंग्स हैपेंस, इफ दिस थिंग्स हैपन, इफ यू हीट इट देन आइस मेल्ट्स, इफ दिस थिंग्स हैपन देन दैट थिंग्स हैपन। अगर हम लोगों ने हीट दिया आइस को तो आइस मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही तो अभी फिर से मैं मतलब एक बार दोहरा देती हूँ, पूरा का पूरा छोटा वीडियो है, कुछ भी नहीं है इधर। मैंने इन लोगों को मतलब इन कंडीशनल सेंटेंस को मैंने पार्ट बाय पार्ट करने के बारे में सोचा है, क्योंकि इससे आपको समझने में मतलब मिक्स नहीं होगा। तो इन अ नटशेल, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस वी कैन रिप्लेस इफ विथ व्हेन। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में ये जो इफ है ना, इसको हम लोग व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, WHEN व्हेन, बिकॉज बोथ एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। क्योंकि जो व्हेन है वो भी और इफ दोनों ही जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है, दोनों ही जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है। कैसे? वो भी एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि
द मीनिंग विल बी अनचेंज, मीनिंग भी अनचेंज रहेगा, व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ इट रेन्स द ग्रास, इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, अगर बारिश हुआ तो ग्रास मतलब भीगेगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, द ग्रास, पर मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, द ग्रास गेट्स वेट, ग्रास भीग जाएगा। इफ को इधर लाते हैं, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुआ तो, देखिए मैंने इफ इट रेन्स को नहीं चेंज किया, इसको रिप्लेस करके इधर लाए, और द ग्रास गेट वेट इसको पहले रख दिया, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मीनिंग सेम है। इसको अगर हम लोग व्हेन से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। पहले मुझे कैमरा को थोड़ा सेट करने दीजिए। ओके, अगर मैं इसे व्हेन से रिप्लेस करूँ तो क्या होगा, व्हेन it rains, okay, comma, the grass gets wet, when it rains the grass get wet, जब बारिश होगा तब क्या है, घास क्या होगा, भीग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग if को when से रिप्लेस किया, हम लोगों ने if को when से रिप्लेस किया। If it rains the grass gets wet, when it rains the grass gets wet, सेम मीनिंग है, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, और if को when से रिप्लेस भी हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए मेरा हैंड राइटिंग और भी ख़राब होता जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज टू मेक स्टेटमेंट अबाउट द रियल वर्ल्ड। ज़ीरो कंडीशनल जो है वो हमें स्टेटमेंट बताते हैं, स्टेटमेंट दिखाते हैं रियल वर्ल्ड के लिए, रियल वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, ठीक है। जनरल ट्रूथ के बारे में बताता है, ज़ीरो कंडीशनल हमें जनरल ट्रूथ के बारे में बताता है, जो ट्रूथ है जनरली सबके लिए। सच साइंटिफिक फैक्ट्स, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स भी बता सकते हैं हमें, इस ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करके हम लोग साइंटिफिक फैक्ट्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट द टाइम इज़ नाउ और ऑलवेज, टाइम और अभी का होगा, नहीं तो ऑलवेज यूज़ होगा। टाइम मतलब ज़ीरो कंडीशनल में जो टाइम यूज़ किया जाता है वो अभी का होगा, नाउ, और आप लोग उसे सिर्फ ऑलवेज, जो तब के लिए सच था अभी सच है, फ्यूचर में भी सच होगा, ऐसे सेंटेंस में आप ज़ीरो कंडीशनल यूज़ कर सकते हैं। एंड द सिचुएशन इज़ रियल एंड पॉसिबल, सिचुएशन रियल होगा, ओरिजिनल होगा सिचुएशन, ओके। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, ये भी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ के ज़रिए मैंने इसको एक्सप्रेस किया है। अगर तुम रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो तुम्हें पर्पल कलर मिलेगा, सेम टू सेम, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। तो इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू इज द इफ सेंटेंस, ओके, कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशन और जो रिजल्ट क्या हुआ, यू गेट पर्पल, तुम्हें पर्पल कलर मिलेगा, ये है रिजल्ट। तो यही है और कुछ नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट कंडीशनल करेंगे। मैंने इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है आपके लिए, और आज के लिए बस इतना ही। और भी ग्रामर का जो वीडियो है मैंने बनाया है, बहुत सारा है, आप मेरे मतलब वीडियो सर्च कर सकते हैं, द एफर्टलेस इंग्लिश 721, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए और उसे सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप कुछ भी वीडियो आपका मतलब नया कुछ आपको जानना है ग्रामर के बारे में या कुछ आपके टेक्स्ट के बारे में, तो मुझे ज़रूर
कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए. इट विल इंस्पायर मी सो मच. आज के लिए बस इतना ही. गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन एंड अगेन. बाय बाय.